Welcome to my channel Best English Grammar Classes. We have started words often which confused and misused. We have done 10 sentences before. For your practice, I have taken 12 sentences more today. The same two words will be given in different sentences, how to use the word in each sentence. So I'm just going to clear it with you today and I'm going to discuss it with you today. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। हम काम शुरू किया, हमने क्या किया है, वो अक्षर जो कंफ्यूज भी करते हैं और मिसयूज्ड भी होते हैं, तो उसको हमने कैसे करना है। 10 सेंटेंस मैंने करवा चुकी हूँ। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने और आज 12 सेंटेंसेस लिए। वही दो वर्ड जो होंगे, हर एक को अलग अलग सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसको आपके साथ मैं डिस्कस भी करूँगा, आपको समझाऊंगी भी। सो आज से हम काम शुरू करते हैं। ये है वो वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। So let's start the word with the first sentence. The sun sets in the west. West and west, these are two. Pronunciation is the same, but the spelling are totally changed. W-E-S-T, V-E-S-T. So what is it? This west means directions. North, south, east, west. The directions are this one. The sun sets in the west. हाँ जी, पहले देखिए, the sun sets in the west और west बोलते हम वैसे ही हैं, वेस्ट वेस्ट ही है, मगर स्पेलिंग में क्या है W-E-S-T और यहाँ पे V-E-S-T है। अब ये वेस्ट कौन सा है, हम जो दिशाएं कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये वेस्ट आ गया। सूरज कहाँ से छिपता है, पश्चिम की तरफ छिपता है, तो ये W-E-S-T वाला वहाँ आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस, माई सन वेयर्स अ वेस्ट, वेस्ट मेड ऑफ कॉटन। वेस्ट होती बनियान, जो हम शर्ट के नीचे लड़के पहनते हैं उसको कहते हैं, तो उसने क्या है, उसके लड़के की बनियान किससे बनी है, कॉटन की बनी है, तो ये वाला वेस्ट W-E-S-T आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई सन वेयर्स अ वेस्ट, वेस्ट मेड ऑफ कॉटन। वेस्ट इज अ dress which we used to wear under a shirt. The boys used to wear under a shirt. So what would it is made of cotton. So what is it? My son wears a vest. V-E-S-T. Vest made of cotton. Next one. Can you bear? B-E-A-R-B-A-R-E. This inside. Now one thing is that this bear. B-E-A-R. This bear is also an animal. Wild animal bear. We can call it, but here this is not an animal. So what will be there? B-E-A-R-B-A-R. Can you tolerate it? We can, if someone inside you will ask, you can tolerate it? Can you bear it? So this bear, B-E-A-R, this inside. हाँ जी, अगला देखिए, can you bear, B-E-A-R-B-A-R-E, this inside. अब ये bear का होता है, जैसे हम भालू कहते हैं, जंगली जानवर, उसके भी यही स्पेलिंग, मगर यहाँ पे जंगली जानवर नहीं आएगा। यहाँ पे कहते हैं ना, उसने तुम्हारी पे बेइज्जती की है, तुम उसको बर्दाश्त कर सकते हो, उसको सहार सकते हो। कैन यू बेयर, उसमें ये बेयर स्पेलिंग ये आएगा, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड थोड़े से ही हैं, मगर हर एक वर्ड का सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग बदल जाता है। तो इसमें ये नहीं, जानवर वाला नहीं आया, ये है कि तुम जो उसने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम उसको बर्दाश्त कर सकते हो, बेयर कर सकते हो, ये वास्ते है। नेक्स्ट है, ही वेंट आउट बेयर फुटेड। बेयर फुटेड मीन्स नंगे पाँव चलना, बिना चप्पल बिना जूतों के, तो उसके में क्या आ जाएगा, B-A-R-E, बेयर फुटेड। Now, next sentence is you went out barefooted. B-E-A-R-B-A-R-E. Which one will come? As I told you, in English there are words, are limited words, but each word has so many different meaning according to the sentence. Whenever you do it, read the sentence properly and take it out what the meaning he or she it is asking. So here this is not an animal. This is what is said. Can you tolerate it? Now next one is B-A-R-E, means if you go out without slippers, without shoes. So we will say he went out barefooted. This will come B-A-R-E. Next, the accused was released on bail. Now here are two, B-A-L-E, B-A-I-L. What is it? Bail means when a thief or when a person is accused and he was released for something, to giving up the money he will give, he got bail. So B-A-I-L. अगला है, the accused was released on bail. कभी भी कोई चोर उचक्का या कोई भी है जिसको भी जेल में होता है, तो उसको बेल ली जाती है। बेल क्या, पैसे देकर कुछ दे दिए, उसको जमानत में छोड़ देते हैं, तो वो बेल में क्या आएगा, B-A-I-L, बेल आ जाएगा। नेक्स्ट है, he bought a बेल ऑफ कॉटन। ये बेल तो ये हो गया, उसको जमानत मिलती। दूसरी है बेल में ना जो गट्ठर होता है, बंडल होता है जिसको हम बोलते हैं, उसको कहते हैं ही बॉट ए बेल ऑफ कॉटन। उसने कपास की एक बंडल उसने खरीदा, तो ये B-A-N-E आएगा।
Next one, he got a bale of cotton. Bale means, here the bale means bundle, a bundle of cotton. It is struck into made into a bundle. So he bought how many children? He bought a bale of cotton. Next one, all have to die one day. It is obviously, we all say, no one is going to live on this world forever. Everyone have to die one day. So which die will come? D-I-E. This die will come. हाँ जी, अगला आ गया डाई और डाई पे. ऑल हैव टू डाई वन डे. कहते हर किसी को मरना है, कोई इस दुनिया में पक्का नहीं है भाई यहीं रहेगा. कहते हैं ना एक ना सबने मरना है. तो उसमें डाई में क्या स्पेलिंग आएंगे? DIE, डाई वाले स्पेलिंग आ जाएंगे, DYE. अब अगला जो है डाई है. दिस पीस ऑफ क्लॉथ, हम कपड़े को रंगने जाते हैं, पगड़ी रंगते हैं, कपड़ा रंगते हैं, तो बाल भी हम रंगते हैं, काले करते हैं, तो उसके लिए क्या सा याद है? DYE, डाई आ जाता है. तो कहते हैं इस कपड़े को लाल रंग में इसको रंग कर दो, डाई कर दो. नेक्स्ट इज डाई एंड डाई. दिस पीस ऑफ क्लॉथ रेड. नाउ नेक्स्ट वन है नाउ इट इज एवरीवन यूज्ड टू डाई देयर हेयर अगेन. वी यूज्ड टू डाई आवर दुपट्टास, clothes, whatever we want to, we use it to change it to other color. When we do it that way, we will say dye it. So DYE, dye, it will become, that's to dye this cloth into red. Next, who sat on the throne after Akbar? Now there are two thrones, THRON, THROWN. Now which one will become? This one, THROWN. The seat, the main seat where the king used to sit is called a throne. नेक्स्ट आ गया हु सेट ऑन द थ्रोन आफ्टर अकबर. ये थ्रोन होता है गद्दी जिसे कहते हैं. तो गद्दी के ऊपर कौन बैठा? अकबर के बाद गद्दी के ऊपर THRON, थ्रोन आएगा. तेरा अकबर के बाद कौन गद्दी पे बैठा? द वेस्ट वॉज थ्रोन बाय मी. अब दूसरा थ्रोन है जो फेंक देना, हम कोई कूड़ा करकट लेकर बाहर फेंक देते हैं, किसी चीज को बाहर फेंक देते, तो उसमें ये THROWN, थ्रोन आ जाएगा. तो कहते हैं ये जो बाहर कूड़ा फेंका वो मैंने फेंका है. The waste was thrown by me. Thrown means to pick it out the thing and throw it out. So they said this waste is, what is it? Whether it is garbage, what is it waste? It is thrown by me. Tell me way to the station. Now this way means path, 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 or road, or street, or way. Then tell me the way to the station. Now somebody has come and asked, just tell me the way. Means he wants to know the path or the road which leads to the station. So we use WAY. हाँ जी, अगला है tell me the way to the station. अब ये WAY means रास्ता. कोई आया आपसे पूछा भाई फलानी जगह जाना है, उसका रास्ता बता दो. तो हम रास्ता बताने के लिए पता है WAY को वेज करते हैं. अब ये कहता है कि मेरे को कौन सा रास्ता बताओ? स्टेशन जाने का रास्ता. तो उसमें आकर WAY वे आ जाएगा. लास्ट में है हाउ मच डू यू वे. कहते हैं ना तेरा भार कितना है, तुम कितने किलो के हो, कितने भारे हो. तो उसमें जो है दूसरा भार के लिए जो है वो WEIGH वे आ जाएगा. लास्ट वन इज हाउ मच डू यू वे. सो इन दिस वी विल यूज WEIGH. नाउ दीज आर द 12 sentences I have done it. According to me, I have explained you and discussed with you in a simple way, an easy way. Most of you have learned, not more, something you have learned, I think so. If you have learned it, you enjoy it. So please continue looking at my videos. ये मैंने 12 सेंटेंस लिखे हैं. आपको मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ बिल्कुल सिंपल और इजी वे में सिखाने की. आपसे मैंने डिस्कस भी किया, कुछ ना सीखा भी होगा, ये नहीं मैं कहती नहीं. किसी ने नई भी चीज़ देखो, किसी ने कहा चलो ये तो छोड़ो जी, ये तो पहले भी हमने किया हुआ है. और जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है. तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ आए, कुछ नया सीखा है, तो मेरी वीडियोस देखते रहिएगा. और उसके लिए लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. इफ़ यू एंजॉय माई वीडियो एंड यू हैव लर्न समथिंग, नॉट मोर बट समथिंग यू हैव लर्न इट. फॉर सम इट विल बी ऐसे दिस इज नथिंग, not good for use even, but it is a very useful thing in, or according to the exams. Mostly they give such things to test the knowledge of the person who is coming and giving the exams. So for those who have learned something and who came to know about something new, so and enjoy it, so like it, share it, comment it and subscribe my channel. Thank you.